Okay, good afternoon, friends. Good afternoon, all. In the last lecture, there is some query of the student that the second part of the cost center audio lecture is not that much of clear. It is not having the audio clarity, and there is some problem in the screen display also. So today I'm going to discuss again the same concept. What is the importance of the cost center and what is the importance of the cost category? So far as the your accounting is concerned. So friends, you can see on my screen, I have already opened one Tally Prime software in which I have created a new company, ABC Private Limited. You can see no voucher has been entered in that company. And now I want to go for passing some entry of the cost center and cost category, which kind of transaction I want to pass on. So you can see on the screen right now example number one, which I am calling as a normal cost center. So let me read the example. Then I will narrate the concept with the example again. So here the example says that rupees 1 lakh of salary expense for the month of April 20, which is paid in the month of 10th May 2020 in the following manner to the different employee. For the simplicity, as we are in the month of I can say year of 21, let me do it as a 21. So make it 2020. I will make it 2021. So it will be easier for you to remember. So 1 lakh rupees of salary expense for the month of April 20, which is going to be paid on the next month on or before 10th of May 2021. In the following manner to different employees. Here, certain names of the employee has been given. Say for example, first is Prakash, to whom the 20% of this expense is going to be allotted. Second is the Mahesh, to whom the 40% of the expense is going to be allotted. Third is Naresh, to whom the 25% of the expense is allocated. And the Priya, the remaining 50% will be given to the Priya. So these are the four employees who are working maybe in your company. And say for example, every month you are supposed to pay them 1 lakh rupees of salary. So the option with you, either you can start your working with the Microsoft Excel file, in wherein you can prepare a file for the salary and you can start the allocation in the Excel sheet according to the percentage given here. So what I will do actually, as per the percentage, if I go for the calculation of this salary amount in rupees, it comes to say for example here it comes to 20,000 in the first category. In the second category, it will be comes to 40,000 in case of second employee. Okay. In case of third employee, it will be comes to rupees 25,000. In case of fourth employee, it will be comes to 15,000. So this is how you should try to write down in your Excel sheet each and every month. If amount is same, this amount will be remain also same. But what about if the amount of salary expense is going to be changed every month? So one what the person will do, he will try to set up a formula in the Microsoft Excel and try to drag the formula and try to calculate this thing every month. This is one option. Second option is we call as a predefined cost center that we are going to discuss in the second example. So first of all, try to understand this first part and how the normal cost center and cost category be utilized or you can use for the accounting purpose. I'm coming back to my Tally Prime screen. I hope so the screen is visible. In the screen, if I want to see whether the cost center and cost category functions are activated or not, so how I can check it out? So first of all, in the master, I will go into the create tab. In the create tab, you can see here in the accounting master, it is showing the group, ledger, currency, voucher type. In the inventory master, stock group, stock category, stock item. But nowhere it is showing the cost center and cost category. Nowhere it is showing your cost center and cost category. Sir, how to enable this function? So let's go back on the gateway of Tally. In the gateway of Tally, I will go back again. I will press F11 from the gateway of Tally. If I press F11, it will be showing the features screen. In that, you can see in the tab of accounting, the third sentence which is written enable cost center. So here it is by default it is no. I will make it yes. And for the purpose of saving this task, I will press Ctrl plus A from my keyboard. So now the cost center function is activated. So how to check?
So again, if you remember, I will try to check it out how. I will go into the master. In that, I will go into the create tab. You can see, have you observed a difference? Yes. A cost center word is now enabled on your screen. It is already activated. So what about the cost category? It is not showing right now. So if I, here is one option is given, show more. So if I click on the show more, you can see it shows the three different things. First is the cost category in the accounting master, second is the cost center, and third is the cost center class. So how to utilize this all these three functions in the Telebrain, that we are going to see today. So let's see how it is going to be utilized. So first of all, I will try to pass on the single entry. Was my first example. Please remember the example. Example number one says that whereby I am giving the name as a normal cost center. It says that 1 lakh of rupees salary expense for the month of April 21, which is going to be paid in the next month on or before the 10th of May 2021, among the following different employee as per the percentage. So for the conveyancy, I have already converted the percentage into the rupees, Indian rupees, and let's see how this 1 lakh is going to be allocated to this different employee. So I'm coming back to the entry. In the transaction, I will go into the voucher. In the voucher, again, here one aspect or one function is already activated. Let me just deactivate because I want to show you something. Just give me 1 second. So yes. Okay. I will be coming back to the my voucher screen. I will go into the voucher now. Is still there? Yes, it is still there because something is here not. Okay, now it's perfect. Okay, so you can see in the voucher what actually I am trying to do. I am trying to just deactivate one of the function which I want to show you how to activate it later on. So that's why I am trying to deactivate that function. If I go into the voucher, if I go into F5, that is F5, your voucher, that is payment voucher. In that first step, I want to go for creation of passing an entry of salary. So it is asking again what will be the entry. Obviously the entry will be salary expense account debit to cash if it is paid by cash, and if it will be paid by bank, then it will be, you can say, pay by check, then it will be by a bank. Okay, so this is the entry. So what I will do first, let me create first of all cost center. Okay, so I will do, I will go into the master screen. In that create, in that I will go for the cost center. The cost center, I will try to allocate the cost. Why I am creating a cost center? Because I want to see that is how much amount of Prakash is getting in the way of salary from me, and how much revenue that Prakash is going to give to my company. So how much he is actually getting this kind of revenue, or how much of revenue he is trying to generate for my company, that I want to see. So how I can see? I can see by way of cost center. So in the cost center screen, I will, here I can make a Prakash as a cost center. अगर मुझे employee wise cost center set करना है तो, again I am repeating the thing. If I want to generate the cost center employee wise, I can go like this. I can show you some different way also. Just hold on. So मुझे प्रकाश का एक कॉस्ट सेंटर बना लिया. यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अंडर, यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको कैसे रखना है, प्राइमरी में रखना है, तो यहाँ पे उसको प्लीज प्राइमरी ही रखें, उसको अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है. मैंने प्रकाश का कॉस्ट सेंटर बना लिया. उसके बाद नेक्स्ट है महेश, जो मुझे एम्प्लॉई वाइज कॉस्ट सेंटर देखना है कि महेश को मैं कितना सैलरी देता हूँ और मुझे कितना कमा के लाके देता है. उसके बाद है नरेश. चलिए नरेश का भी कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया. उसके बाद आती हैं प्रिया. चलिए प्रिया का भी कॉस्ट सेंटर हम क्रिएट करें. So see, I have already created the name of all the cost center. अगर आपको देखना है तो आप ऑल्टरेशन स्क्रीन में जाके कॉस्ट सेंटर में जाके देख सकते हैं. हमने जो अभी 4 एम्प्लॉइज के नेम से कॉस्ट सेंटर बनाए थे, वो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैं जाऊंगा वाउचर्स में. In that voucher, I will for passing the entry now. So I will press F5 from the keyboard. Here it is asking from the ledger. So obviously I will go for Alt+E.
salary expense. I will create that group. The grouping will be indirect expense. Type of ledger I will not give. Again, here it is asking cost centers are applicable or not. Okay. यहाँ पे यस आ रहा है क्योंकि हमने कहीं पे ऑलरेडी उसके जो फीचर्स थे वहां पे कॉस्ट सेंटर को यस किया था, इसीलिए वो यहाँ पे यस दिखा रहा है। अगर आप F11, जब मैंने थोड़ी देर पहले गेटवे ऑफ दिल्ली में जाके आपको F11 जो फीचर्स का टैब था उसमें जाके कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करने के लिए आपको बताया यहाँ से एक्टिवेट कीजिए, वो एक्टिवेट अगर यहाँ पे वहां पे नहीं हुआ होगा F11 में जाके, तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन में ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे नहीं आएगा। अगेन मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने F11 में जाके कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट नहीं किया होगा, then the specific task or the specific function which is showing right now in the ledger creation, whether the cost centers are applicable, yes or no, so this sentence will be not visible to you. Right now it is visible because I have already activated, so I will say yes. Then other thing remaining same, I will go for control A. Here I will write down the salary expense of 1 lakh. As soon as I just enter the 1 lakh, it is asking for the allocation कि आपको किस तरह से 1 लाख रुपए का जो सैलरी एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, in which way you want to allocate this expense. So here you can see that is for who is the first one. I think so. I have to check out the percentage. प्रकाश का परसेंटेज है 20%. तो आपको याद होगा हमने ऑलरेडी उसको रुपीस में कन्वर्ट किया, ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू रुपीस. सो प्रकाश का परसेंटेज 20% के हिसाब से उनका पोर्शन बनता है 20,000. महेश का पोर्शन बनता है 40,000 अकॉर्डिंग टू 40%. और नरेश का यहाँ पर परसेंटेज बनेगा 25,000. आई थिंक सो वन लास्ट प्रिया, उसका यहाँ पर परसेंटेज बनेगा 50,000. तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 1 लाख का सैलरी एक्सपेंस बुक किया और उसको कॉस्ट सेंटर के वाइज अलॉकेट कर दिया. मैंने उसको एम्प्लॉई वाइज कॉस्ट सेंटर बनाया है. तो प्रकाश इज वन कॉस्ट सेंटर फॉर मी, महेश इज वन कॉस्ट सेंटर फॉर मी, Naresh is one cost center for me, and Priya is one cost center for me. Obviously, I am going to make a payment in cash. So यहाँ पे negative cash दिखाएगा, वो cash है ही नहीं, कोई बात नहीं. हम सिर्फ education purpose के लिए देख रहे हैं. So we can go for further ahead. Being, I will just write down expense from the month of April 21 paid. और यहाँ पे एक चीज अगर ध्यान दोगे तो मैंने उसका डेट दिया था 10th में, लेकिन एजुकेशन वर्जन में डेट नहीं चेंज कर सकता, इसलिए मुझे फर्स्ट स्टेप को एड करना पड़ रहा है. चलिए इसको एंटर करके सेव कर देते हैं. तो हमने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट करके एंट्री देख लिया. अब मुझे देखना है कि इसका इम्पैक्ट है, तो रिपोर्टिंग कहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा. सो इन द गेटवे ऑफ टैली आई विल गो इनटू द डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स. इन दैट आई विल गो इनटू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. In the difference statement of account, first is outstanding, second is the cost center, third is statistics, and fourth is the quit. So go into the cost center. In the cost center, the first thing which is asking is cost center summary. I will go for the second one, cost center breakup. तो cost center breakup देता हूँ, तो चलिए पहले महेश का देख लेता हूँ. तो देखिए यहाँ पे आपको indirect expense दिख रहा है. ये मैंने कौन सा शॉर्टकट की यूज किया? I have just used शॉर्टकट की और shift plus enter. ओके ये भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको शिफ्ट प्लस एंटर यूज नहीं करना है तो यू कैन गो फॉर, आई कैन सी देयर इज ओनली वन की व्हिच यू हैव टू यूज, दैट इज शिफ्ट प्लस एंटर व्हेन योर कर्सर इज ऑन द इंडायरेक्ट एक्सपेंस. सो सैलरी एक्सपेंस आपका महेश को दिया. इसी तरह से चारों लोगों को जितना सैलरी का आपने प्रपोर्शन दिया वो यहाँ पे देखने को मिलेगा. ये कॉस्ट सेंटर का ब्रेकअप हो गया. अगर आप कॉस्ट सेंटर समरी देखने जाएंगे तो देखिए ये चारों की समरी दिख रही है कि महेश को कितना है. इस तरह से पूरे साल में 12 महीने की 12 एंट्रीज होगी तो यहाँ पे वो एक्यूमुलेट होकर आपको देखने को मिलेगा. See, the way is I am trying to track my cost, and what is the cost? That is salary expense. As good as you understood the concept of the cost, you can also understand the concept of the income also. If on one side you are paying, I can say paying your expenditure, on the other side you can also track down the revenue also. अगर महेश एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, नरेश एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है आपकी कंपनी में, प्रकाश एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, प्रिया एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो इनका रेवेन्यू आप यहाँ पे उसको ट्रैक कर सकते हैं और रेवेन्यू के अगेंस्ट में आप उनको कितना सैलरी एक्सपेंस दे रहे हैं दैट यू कैन फाइंड आउट. एंड ऑन द बेस ऑफ दैट यू कैन गो फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सैलरी हाइक, दैट इज अगेन इन द नेक्स्ट ईयर. बिकॉज आज की डेट में इंडस्ट्री में प्रैक्टिस है कि इफ यू आर हैविंग कंप्लीटेड 1 ईयर इन एनी कंपनी,
So from the next year you are eligible for the salary increment. तो उसके बेस पे यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। चलिए एक और एंट्री देखते हैं। मैं जाता हूँ अकाउंट्स बुक, एक स्टेप पीछे जाऊंगा। सो एक एग्जांपल मैंने समझ लिया, ठीक है, मैंने पहला सिंपल सा एग्जांपल को बता दिया। अब मैं वापस एग्जांपल नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल नंबर 2 बिकॉज इट इज समथिंग एल्स। Rupees 1,50,000 of salary expense for the month of April 21, which is paid on 10th May 2021 in the following manner to different employee. और यहाँ पे मेघना है, उनको 20% दिया जा रहा है, मनीषा है, उनको 40% दिया जा रहा है, खुशबू को 25% एंड जानवी को 15%। प्लीज रिमेंबर द परसेंटेज। अगर मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि एक ऑप्शन आपके पास है, यू कैन ट्राई टू वर्क आउट द कैलकुलेशन इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट and every time you can do the calculation in the Microsoft Excel and then you can pass on the entry. ये एक option available है definitely. But what about if this option you are not want to use? Sir, is there any other option is available? The answer is yes, and the answer is predefined cost center. The answer is predefined cost center. So for that what to do? Again I will come back to my, यहाँ पे सिर्फ प्लीज एग्जांपल याद रखिएगा, 1.5 लाख का सैलरी है, मेघना, मनीषा, खुशबू एंड जानवी। आई एम कमिंग बैक टू द टैली क्लाइंट। सो अगर मुझे प्री डिफाइंड रेशियो उनका दे देना है कि हर महीने पता नहीं इनका सैलरी क्या होगा, इट मे बी इन द वेरिएशन, देयर इज नो फिक्स अमाउंट के सैलरी इनका 1,50,000 ही रहेगा, बेस्ड ऑन द वर्क व्हिच दे आर डूइंग इन द कंपनी, इट इज बेस्ड ऑन द बोनस और यू कैन से ऑन द ओवरटाइम, द अमाउंट ऑफ सैलरी मे बी फ्लक्चुएटिंग. So in this month it may be comes to 1,50,000, in the next month it may goes for the 2 lakh, in the next again after that it may be goes on, you can say higher side. So there is no fixed amount of salary because salary is a combination, you can say this general normal salary as in plus incentive and bonus and all that thing. So ऐसे केस में आपका सैलरी का अमाउंट चेंज होता रहेगा, लेकिन हाँ परसेंटेज फिक्स है क्योंकि इट इज गिवन एज पर द डेजिग्नेशन। मनीषा का डेजिग्नेशन आया तो उनको 40% मिल रहा है, खुशबू का 25, मेगा का 20 और जानवी का 50. So let's see how we can utilize the predefined cost center in this. So now I will go into the master, Gateway of Tally master में create में जाऊंगा. In that से यहाँ पे तो cost center हमने create किया था, यहाँ पे एक और टैब था, मैंने ऊपर पहले ही बताया था कि show more, उसको मैं क्लिक करता हूँ। show more पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मुझे बहुत कुछ दिखने लगे। cost category, cost category नॉर्मली हम लोग प्राइमरी ही रखते हैं, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद एक और एग्जांपल आएगा तो शायद वहां पे आपको कॉस्ट कैटेगरी कैसे करना है वो समझ में आएगा। यहाँ पे मुझे ऑप्शन यूज करना है कॉस्ट सेंटर क्लास। अगर आपको प्री डिफाइंड सेटअप लेना है, अगर आपको प्री डिफाइंड परसेंटेज फिक्स करना है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर कॉस्ट सेंटर क्लास। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लास का नाम क्या है। ओके, इट इज आस्किंग फॉर द क्लास नेम, तो मैं उसको दे देता हूँ मनीषा। मैं उसको ऑलरेडी डिक्रीजिंग फॉर्मेट में यानी कि हायरार्की में देता हूँ। मनीषा का आई थिंक सो यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर था मनीषा, उसको जैसे एंटर किया, सॉरी यहाँ पे, हाँ वापस एक स्टेप पीछे जाता हूँ, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम इसको प्राइमरी ही लेते हैं, या तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस के लिए तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी आ गया और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पूछे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा नए कॉस्ट सेंटर क्योंकि मेरे एम्प्लॉय के नेम अलग है। सो मनीषा इज हैविंग, अगेन यहाँ पे आप इसको सैलरी करना चाहे तो कर सकते हैं, नो इट इज नॉट पॉसिबल, आई हैव टू गो विद द प्राइमरी फंक्शन। मनीषा को मैं यहाँ पे कितना देना चाहता हूँ, मैं उसको 40% देना चाहता हूँ। इसके बाद कौन आएगा, खुशबू, क्रिएट में जाना पड़ेगा क्योंकि खुशबू है नहीं। चलिए खुशबू भी आ गई, इसको कितना परसेंटेज देना है, तो खुशबू को 25% देना है। मेघना, चलिए क्रिएशन में जाऊंगा, मेघना आई थिंक सो देना है हमें 20% और उसके बाद है जानवी, तो जानवी को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो जानवी का हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर दिया, इसको हमें यहाँ पे 15% डाला है, ठीक है 15% ही था। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज आपको पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे
कॉस्ट सेंटर क्लास वाला फंक्शन यूज किया था जो प्री डिफाइंड के लिए, प्री डिफाइंड फॉर्मेट है तो प्री डिफाइंड रेशियो के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको पढ़ा कैसे जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर इट इज रिटन कॉस्ट कैटेगरी। उसके नीचे जो सबसे पहले टॉप मोस्ट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा वो प्राइमरी कॉस्ट है। सो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी यानी कि इसका कैटेगरी मैंने क्या रखा है, प्राइमरी रखा। सेकंड लाइन में देखिए लिखा हुआ है इन द सेंटर ऑफ द लाइन नेम ऑफ द कॉस्ट सेंटर। तो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ द कॉस्ट सेंटर क्रिएट किए। मनीषा कॉस्ट सेंटर था नहीं, खुशबू था नहीं, मेघा था नहीं, जानवी भी नहीं था, उनको एक परसेंटेज दे दिया मैं। अब ये परसेंटेज फिक्स है, ठीक है, ये परसेंटेज फिक्स है। मैंने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बनाया सैलरी एक्सपेंस, उसको प्राइमरी की कैटेगरी में डाला और उसको सब बाइफरकेशन दे दिया कि इनको इतना डिवाइड कर दीजिए। अब ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। चलिए मैं अभी वाउचर एंट्री के लिए जाता हूँ। मैं वापस एंट्री दिखाना चाहूंगा। 1.5 लाख रुपए का सैलरी एक्सपेंस है जो मुझे मेघना, मनीषा को और खुशबू और जानवी को फॉलोइंग आई कैन से द क्राइटेरिया में उनको दे देना है। ओके, सो ये कैसे होगा हम देखते हैं। लेट्स सी हाउ वी गेट द थिंग। सो मैं यहाँ पे एक एंट्री प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन सैलरी एक्सपेंस ही रखूंगा, लेकिन यहाँ पे अब की बार 1,50,000 की सैलरी मुझे देनी है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रकाश, अब देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग है। अब एक्चुअली ये नहीं आना चाहिए, तो सर क्या आना चाहिए? मुझे यहाँ पे आपको F12 में जाना पड़ेगा। यू आर सपोज टू गो F12। मैं वापस से दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या एक फंक्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर के लिए। पहले हमने कॉस्ट सेंटर क्लास में क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैं वाउचर में जा रहा हूँ। तो एक चीज यहाँ पे मिसिंग है जो मुझे एक्टिवेट करने के लिए F12 में जाना है। F12 configuration में जाने के बाद if you can see the my cursor is moving here, that is select the cost center class। तो मैं यहाँ पे इसको यस करता हूँ। जैसे आपने इसको यस किया, उसका नीचे का एक सेंटेंस है शो द लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, उसको भी यस कर लीजिए। ये दोनों फंक्शन को आपको एक्टिवेट करना है यहाँ पे। मैं इसको कंट्रोल ए लेके सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद देखिए the new thing which is appearing on the screen, that is it is now asking for the cost center class। It is asking for कॉस्ट सेंटर क्लास। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब कॉस्ट सेंटर क्लास क्रिएट किया था वहां पे मैंने एक सैलरी एक्सपेंस क्रिएट किया था, और थोड़ी देर पहले भी हमने सैलरी एक्सपेंस का एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया था। तो मैंने सैलरी एक्सपेंस का कॉस्ट सेंटर ले लिया, सैलरी एक्सपेंस का लेजर ले लिया। यहाँ पे मैं 1,50,000 ले लेता हूँ और उसको कैश पे कर देता हूँ। ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ बेइंग कैश पेड फॉर सैलरी, इतना ही लिख देता हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना, इतना चलेगा सर। लेकिन ये ऑटोमेटिकली बाइफरकेट तो नहीं हुआ। देखिए इसका एक्चुअली ये फंक्शन काम कैसे करता है। मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ। ओके, इट इज आस्किंग फॉर वेदर टू एक्सेप्ट और नो। यस, एक्सेप्ट। जैसे ही मैंने सेव कर लिया सर, वो ऑटोमेटिकली एलोकेट हो गया या मुझे करना पड़ेगा? अभी वो देखने के लिए आपके कीबोर्ड पे एक पेज अप और पेज डाउन का फंक्शन की दिया होता है। अगर मैं पेज अप का फंक्शन की यूज करता हूँ तो लास्ट एंट्री विच आई ऑलरेडी सेव जस्ट बिफोर 1 second, it is showing on the screen and you can see at the time of passing the entry of rupees 1,50,000, I have not given the amount, that is how much amount is allocated to Manisha, how much amount is going to be Khushbu, and how much amount we are supposed to pay to Megha and Janvi. As per the predefined ratio, predefined percentage, the software has automatically calculated the value and it is already saved. Okay, so this is the beauty of the cost center class, that is predefined category. Now I want to see how it is going to be look, or in reports how I can check it out. So I will go into the display more reports. In that I will go to the statement of account. In that I will go to the cost center. You can see here the cost center summary, cost center breakup. I will go cost center breakup. यहाँ से भी देख सकता हूँ। ठीक है, ये तो एक चीज है यहाँ पे अवेलेबल है। कॉस्ट सेंटर समरी में जाऊंगा तो जितने भी कॉस्ट सेंटर मैंने एम्प्लॉय के क्रिएट किए थे वो सारे देखने को मिलते हैं। एक और चीज है, एक और जगह है जहां से मैं ये रिपोर्ट देख सकता हूँ। आई विल गो टू द Alt+G। यस, Alt+G में जाऊंगा। Alt+G में लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स यहाँ पे आ रहा है। मुझे यहाँ पे सर्च करने के लिए एक मेरा कर्सर की ऑलरेडी ब्लिंक हो रहा है। सो आई विल राइट डाउन द कॉस्ट। Just I have written down the cost. You can see the multiple options are available. Cost center breakup of ledger, cost center breakup of group, cost center reports में आपका आ रहा है cost center breakup of ledger, cost center breakup of group, cost center monthly summary। मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, cost center breakup of group देखते हैं। अब ग्रुप में मैंने ऑलरेडी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए ग्रुपिंग बनाया, तो वो देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, रीजन क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी तक मैंने उसकी में पूरी एंट्री पास ऑन
नहीं किया है। ठीक है, तो वापस मैं आता हूँ मेरे आई थिंक सो वापस Alt+G में जाऊंगा। आई एम गोइंग बैक अगेन। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कॉस्ट या तो कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी भी देखते हैं तो भी वो भी आपका कॉस्ट कैटेगरी में आता है। सो कॉस्ट कैटेगरी समरी यहाँ पे आ गया, मैं इसको चेक करता हूँ। अब देखिए कॉस्ट कैटेगरी समरी हमने प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रखा, सो इट इज ऑलमोस्ट अप टू 2,50,000 नाउ बिकॉज आई हैव remain the cost category in the primary cost. Now it is already there. You can see Janvi, Khushbu. Okay. अगेन एक एंट्री करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक और सैलरी का एंट्री करना है। चलिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास में सैलरी का जो मैंने क्रिएट किया था सैलरी एक्सपेंस, एक काम करते हैं 4 लाख रुपए का सैलरी एंट्री पास करते हैं विद द प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अपने आप वो दे देगा, अपने आप को एलोकेट कर देगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। सो ये मैंने एंट्री पास ऑन कर ली यहाँ पे। नाउ वी कैन ट्राई टू चेक आउट ये एंट्री करने के बाद होता क्या है। आई विल गो टू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप खुशबू। यू कैन सी खुशबू का सैलरी अगर मैं देखूंगा यहाँ पे उसको 2 पेमेंट अपने आप चल गए। सो खुशबू का आई थिंक सो परसेंटेज था 40% और 25%, सॉरी 25%, तो 1 लाख रुपए उसको सैलरी अपना चला है। So this is the beauty. Again, some other reports you can access from the gateway of Tally. Go to here. I will write down cost center. So cost center breakup अगर ledger wise देखना है तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ledger का breakup किया था क्योंकि salary expense को मैंने cost center applicable किया था, तो salary expense का आपको यहाँ पे पूरा cost center breakup देखने को मिलता है। So this is how you can access the report, multiple reports. Again, I am coming back to my another third example, so which is going to be focused on cost category and cost center. Now the third example, basically you can see in the first line I have given the name of offices. In the last column is represent the total. Second column is department, and in the third column it is given the different expenses whereby they have given the amount and the total is given in the last column. Total is given in the last column. Okay, here the one I think so 0 is missing. मैं इसको डाल देता हूँ और 8 is there maybe. So वो दिख नहीं रहा है because of let me stretch it out. Okay, शायद अब देखें. Just 1 second. Yes. अब दिया मैंने 0 बढ़ा दिया। ठीक, अब हो गया। देखिए यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेंसेस दिए हैं। सो एक ऑफिसेस दिया है, नाम दिया है, नीचे एक डिपार्टमेंट का नाम दिया है, उसके बाद नीचे सैलरी एक्सपेंस है। तो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट आई कैन गो एज्यूमिंग दैट मैं अभी डिपार्टमेंट वाइज मेरा कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकता हूँ, मैं ऑफिसेज वाइज मेरा कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकता हूँ और सैलरी एक्सपेंस को मैं एज पर माई कॉस्ट सेंटर एलोकेट कर सकता हूँ। यहाँ पर है जिसका टोटल आ रहा है 20,50,000। ओके, तो वो एक्सपेंस फॉर एग्जांपल अगर मैं डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर बनाता हूँ तो 4,50,000 का एक्सपेंस आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए, 8,50,000 आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, और 3,50,000 आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और 4 लाख आपका ह्यूमन रिसोर्स के लिए है। So that is given for the human resource expense. Okay, so let's see इसका एंट्री कैसे होगा। So what I will do, I will go into the voucher. First of all, I will try to create some of the cost center first. I will go into the master. In that, I will go into show more. देखिए इसका ब्यूटी कैसे करते हैं हम लोग। कॉस्ट कैटेगरी अगर आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहें तो कॉस्ट कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में रहते हैं, तो मैं इसको कैटेगरी के टाइप में इसको यूज करने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी नया क्रिएट कर लेते हैं। सो ऑलरेडी प्राइमरी कॉस्ट सेंटर है मेरा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्राइमरी कॉस्ट सेंटर मेरा बड़ौदा के ऑफिस के लिए, और मैं काम करता हूँ, मेरा एक ब्रांच ऑफिस है जो पुणे में है, तो मैं यहाँ पे एक पुणे ऑफिस करके एक कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चले कि अगर मेरा अकाउंटिंग हो रहा है सेंट्रलाइज, तो पुणे या तो फिर एक काम करते हैं, हम गुजरात तक ही लिमिट रहते हैं। सो एक मेरा ऑफिस है, यू कैन से फॉर एग्जांपल राजकोट, राजकोट में एक ऑफिस रख देते हैं। सो राजकोट में मेरा एक ऑफिस है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, यू कैन सी अगर मैं एक कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ तो इट इज आस्किंग अलोकेट द रेवेन्यू आइटम, तो यहाँ पे यस रखिएगा। अलोकेट द नॉन रेवेन्यू आइटम,
इसको नोट रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटेंट। अगर आपको नॉन रेवेन्यू आइटम्स भी अलोकेशन करना है, सी रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू का डिफरेंस आपको पता होगा, नहीं पता है तो यू कैन सिंपली आस्क वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ, whatever the product you are purchasing and whatever the product you are selling, whether it is for the purpose of sale and purchase, अगर आंसर हाँ है तो वो रेवेन्यू आइटम में आएगा, अगर आंसर नो है तो वो नॉन रेवेन्यू आइटम में आएगा। अगर मैं कुछ भी सेल या परचेज करने के लिए खरीद रहा हूँ, ओके, तो वो सारा एक्सपेंस आपका, वो सारे आइटम रेवेन्यू आइटम में आएगा। अगर सेल परचेज का इंटेंशन नहीं हो तो नॉन रेवेन्यू आइटम। मैंने अगर प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, सो इट इज अ नॉन रेवेन्यू आइटम। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट आई कैन से रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरा रेवेन्यू आइटम में आएगा। तो यहाँ पर रेवेन्यू आइटम को यस कीजिए, सेकंड को नो रखिए। मैंने एक राजकोट का सेकंड कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लिया। अगर आपको देखना है तो आप ऑल्टरेशन स्क्रीन में जाके कॉस्ट कैटेगरी, सॉरी माय मिस्टेक, ऑल्टरेशन कॉस्ट कैटेगरी में जाके आप देख सकते हैं राजकोट ऑफिस बना दिया, ठीक है। तो जो भी मेरा प्राइमरी में आएगा, समझ लीजिए बड़ोड़ा ऑफिस का, तो मैं ऐसे ऑफिस वाइज भी कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं कॉस्ट सेंटर में जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज, अब देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका कैटेगरी प्राइमरी रहता है। मुझे इसको चेंज करना है, आई विल डू बैक स्पेस, आई विल इरेज इट एंड आई कैन यूज द राजकोट ऑफिस। अब यहाँ पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिफॉल्ट, तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट एंड फाइनेंस के एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर बना लिया। सेकेंड, मार्केटिंग का एक कॉस्ट सेंटर बना लिया। थर्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। तो चलिए ये मेरे कॉस्ट सेंटर हो गए। अब मैं वाउचर एंट्री पे आ जाता हूँ। यहाँ पे वो कॉस्ट सेंटर पूछना है, तो मैं यहाँ पे इसको देना चाहूंगा सैलरी एक्सपेंस का ही। एक्चुअली सैलरी एक्सपेंस काम करते हैं, काम नहीं करते। तो मैं यहाँ पे एक नया कॉस्ट सेंटर अगर मुझे क्रिएट करना है, दैट इज लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो मुझे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करनी, इसको मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, जरूरत नहीं, ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंस चले लेते हैं। वो पूछ रहा है कितना सैलरी है, टोटल 20,25,000 का, सॉरी 20,25,000 का सैलरी है। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट अलोकेशन फॉर सैलरी एक्सपेंस, पहले कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको राजकोट ऑफिस कर देता हूँ। अब वो अकाउंटिंग पूछ रहा है, मैं इसको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डाल देता हूँ 4,50,000। मार्केटिंग में 8,50,000, sorry some mistake, okay, development 3,50,000 एंड लास्ट वन ह्यूमन रिसोर्स 4,00,000। तो देखिए मैंने राजकोट ऑफिस को कॉस्ट कैटेगरी बना दिया, कॉस्ट सेंटर को डिफरेंट डिपार्टमेंट दे दिया। अब मैं इसको सेल कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये क्यों आपको पता चले, इसका रिपोर्ट जब देखेंगे तब पता चलता है, जब तक आप उसका रिपोर्ट चेक नहीं करते तक आपको पता नहीं चलता। आई विल गो इनटू द गो टू, शॉर्टकट यूज करो। यहाँ पे मैं उसको कॉस्ट कैटेगरी में जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले बोला था जो है मैंने वो बड़ा ऑफिस के लिए रखा, और राजकोट ऑफिस को मैंने सेकेंडरी यानी कि सेकंड कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट किया। तो अभी जो भी सारे एक्सपेंस मैंने पास किया है, नो डाउट सारी एंट्री आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखने को मिलेगी, लेकिन कॉस्ट सेंटर वाइज राजकोट ऑफिस का कितना एक्सपेंस हुआ है वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। So this is the beauty that how you can utilize the cost category for two different offices, and in that you can go for creation of the cost center if you want to trace out the revenue and expense against or for each and every employee who's working in your company. So cost center basically आप in short याद रख सकते हैं कि cost category आप utilize कर सकते हैं in order to bifurcate the accounting for the different offices as per your requirement. Cost center you can utilize for the purpose of trace down the revenue as well as the expenses. So this is how you can utilize the thing. यहाँ पे सैलरी, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव आपके लिए दिए, तो यहाँ पे आप ऑफिस का भी एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, और then you can go for the entry. So this is how the cost center and cost category is actually going to be utilized. अब यहाँ पे जब मैं वाउचर में जाता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली वो जो कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है
सो यहाँ पे वो सैलरी एक्सपेंस का ही दिया था मैंने, और इसीलिए वो एक ही कॉस्ट सेंटर दिखा देता हूँ वापस। ये क्यों एक ही दिखा रहा है? इसको मल्टीपल करना है तो मैं कहाँ से करूँगा? मैं कॉस्ट सेंटर में जाऊँगा, सॉरी ऑल्टरेशन में जाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कहीं पे भी आपका सैलरी एक्सपेंस का कॉस्ट सेंटर नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे भी नहीं है। तो मैंने ये किया क्या था, मैंने वो एक्चुअली क्रिएट किया था फॉर दी प्री डिफाइंड कैटेगरी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए मैंने प्री डिफाइंड के लिए यहाँ पे क्लास नेम में सैलरी एक्सपेंस दिया था। तो अगर वो जो क्लास अभी ओवरऑल आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे इन द वाउचर एंट्री, यहाँ पे जो पूछ रहा है डेट के बाद, तो ये वो पूछ रहा है कि क्या प्री डिफाइन है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तभी यूज होगा जब आपको प्री डिफाइन यूज करना है, और इसीलिए मैंने सेकंड एंट्री में नॉट एप्लीकेबल लिया था, क्योंकि मैंने प्री डिफाइंड रेशियो यूज नहीं करना था। अगर आपको प्री डिफाइंड रेशियो यूज करना है तो मुझे क्रिएट में जाना होगा, आई विल गो फॉर शो मोर इन दैट कॉस्ट सेंटर क्लास। यहाँ पे ऑलरेडी ये है तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा, ओके। और आई कैन गो फॉर क्रिएटिंग अ न्यू कमीशन इन दैट प्राइमरी, इन दैट, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब इनको मैं वापस चलिए कोई नए नाम ले लेते हैं, जैसे कि महेश का। सो सबको 25% दे देते हैं, ठीक है। महेश, नरेश, प्रकाश, प्रिया। तो ये मैंने दो प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लिए। अब वाउचर एंट्री में जाता हूँ, चलिए। अब यहाँ पे आपको कमीशन देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको लेजर भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, इसको सेव कर लीजिए। अब कमीशन में चले मान लीजिए सिर्फ 50,000 की एंट्री पासिंग करता हूँ, ज्यादा नहीं। सेव कर लीजिए, पेज अप कीजिए। You can see it is already divided into 25% for each and every employee as per the predefined ratio which is given by you. I hope so this is well understood by you. Here I want to stop it. Okay, the one concept which I want to make you clear, that is nothing but the cost center and cost category. And I will go into display reports. In that cost category summary अभी आएगा क्योंकि राजकोट ऑफिस और प्राइमरी cost category को मैंने अलग किया था। यहाँ पे अगर अब मैं नरेश में जाता हूँ so you can see there are two entries out there. One is for the salary, another is for the commission expense. So this is how you can trace down the thing. Okay, यहाँ पे राजकोट ऑफिस के लिए तो 4 ही हैं, आप वो देख सकते हैं। So this is how you can utilize the option and the facility of the cost center and cost category. Now I want to conclude my session. Thank you so much. If you are having any query again regarding the cost center and cost category, please feel free to ask me. I will try to give the satisfactory answer to you and we can proceed further ahead. Okay, thank you so much.